ये शुरू कर दें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 2 दिन में ये हो जाएगा, फिर 2 दिन में इंशाल्लाह सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो हमारा इंशाल्लाह 31 अगस्त तक ना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये जो दोनों टॉपिक हैं इनमें बहुत कम ही न्यूमेरिकल पार्ट है, ज़्यादा थ्योरी है। जब भी आप देखें इनका भी पास पेपर्स में मार्क्स का जो प्रोपोर्शन होता है दैट इज 5 3 3 4 6 5 6 एंड 5 5 6 6। और ये फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ये तो आता भी बहुत कम है, ठीक है। एनी हाउ अभी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो क्वेश्चन है वो बड़ा डिटेल क्वेश्चन आता है बेटा। दैट्स व्हाई आप देखेंगे 15 मार्क्स 17 मार्क्स 16 11 8 9 ये बड़ा वेटेज रखता है। इसकी वेटेज जो है ना पूरे सेगमेंट की जो है वो 20 to 30% है, ठीक। लास्ट पेपर जो बेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज ऑफ स्प्रिंग 2019। इसके अलावा ऑटम 2019 का भी मैंने निकाला है, ठीक है। तो आए इनको वन बाय वन देख लेते हैं। दिस इज स्प्रिंग 2019। क्वेश्चन आसान होता है बेटा। इसमें जस्ट जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये जस्ट आया कि बजटिंग की इसमें कैलकुलेशन होगी। जिस तरह बजटिंग के चैप्टर में था इसी तरह इसमें कैलकुलेशन होंगी और आपने रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आइए हमसे रिक्वायर्ड क्या है पहले चलो वो पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड है बेटा कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट and advise whether it would be feasible to accept HL's offer। NPV हमने देखनी है। अगर NPV पॉजिटिव होती है आपको पता है तो हम एडवाइस करते हैं कि प्रोजेक्ट इज feasible और अदरवाइज assume that except where stated otherwise। sorry all cash flows would arise at the end of the year। सारे कैश फ्लो जो हैं वो एट द एंड है। तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर एट द एंड हो और उनको हम कहते हैं एरियर्स, और अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो हम लोग कहते हैं एडवांस। एनीवे आइए देखते हैं बाकी डाटा क्या अवेलेबल है। Lotus Enterprises is engaged in trading of various locally manufactured products. Hope Limited, a company incorporated outside Pakistan, has offered to assist LE in establishing a manufacturing facility in Pakistan for producing its products. LE has gathered the following information in respect of HL's offer. The manufacturing facility will be set up on a land which was acquired by LE 3 years ago for rupees 40 million. Market value of the land at the commencement of the project is estimated at rupees 60 million. Cost of the manufacturing facility is estimated as under. Factory building, other plant installation including installation and other fixed cost। तो अगर आपने ये फैक्ट्री लगानी है तो आपका खर्चा कितना आएगा बेटा? 30, 100 और 10, 140 मिलियन आपका खर्चा आ जाएगा। ओके। Sales for the first year of operation is estimated at rupees 500 million। ये पहले साल की सेल है। It is expected that sales demand would increase by 5% in each subsequent year। तो पहले साल बेटा आपने 500 ही लेनी है, उससे अगले सालों में 5% इंक्रीज करना है, यानी कि 2, 3 and onward। Under the product licensing agreement, HL would be paid a royalty equal to 15% of sales। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कोका कोला का प्लांट ना पाकिस्तान में लग रहा है, तो जब कोका कोला की कंपनी आप पाकिस्तान में लगाएंगे तो आपने कोका कोला जो प्रिंसिपल है उसको 15% रॉयल्टी पे करनी है। It is expected that cost of production in the first year of production would be 75% of sales
including fixed cost of rupees 70 of rupees 50 million. Cost production कितनी आ गई बेटा 75, उसमें से 50 फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग इज वेरिएबल. Additional working capital of rupees 35 million would be required in the first year of production. Working capital requirement would increase by rupees 5 million each year. The rate of inflation is estimated at 8% per annum, with effect from second year onward. It would affect revenues as well as the cost, excluding depreciation. Factory building would be depreciated at 5%, whereas plant and other fixed assets would be depreciated at 25% using reducing balance method. It is estimated that at the end of the plant's useful life of 4 years, life है बेटा 4 years, तो हमें calculation 4 years तक करनी है. Market value of the land would be 75 million and residual value of all the assets would be equal to their carrying value. Market land की हो जाएगी 75 million और residual value of all assets हो जाएगी बेटा equal to their carrying value. Applicable tax rate is 30% and tax is payable in the year in which the liability arises. तो हमने कल टैक्स पढ़ा था, हम टैक्स उसी साल में पे कर रहे हैं जिस साल में हमारी लायबिलिटी आ रही है. हमने उसको 1 ईयर लेटर पे नहीं करना या क्वार्टरली पे नहीं करना. There will be no temporary or permanent timing differences between accounting profit and taxable income. ये deferred tax का concept है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शायद पढ़ेंगे. Ellie's cost of capital is 15%. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें दे दिया गया. तो बेटा इस सारे क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं इसके आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ. जी बेटा. अच्छा, अब इसमें हमने ये बात ध्यान में कर ली थी अभी शुरू में भी कि इसमें कुछ बजटिंग की तरह की कैलकुलेशन आएंगी और रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई करना है. रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट ये कहता है कि आपने ये देखना है कि जब आपने डिसीजन लेना है. अब यहाँ पे डिसीजन क्या है बेटा कि हम हैं, हमारी कंपनी का नाम क्या है LE और उसको ऑफर हुई है थ्रू HL. अब अगर हम LE ने HL के ऑफर को मानना है तो रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये आएगा कि इस ऑफर को मानने के नतीजे में क्या कैश आउटफ्लोज होंगे और फिर क्या कैश इनफ्लोज होंगे ओवर द 4 ईयर पीरियड्स. और उन सारे कैश फ्लोज को, इनफ्लोज को, आउटफ्लोज को हम देखेंगे अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन के साथ भी, अकॉर्डिंगली इंक्रीजेस के साथ भी, और 4 इयर्स के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव है तो हम इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे, अदरवाइज अंडरटेक नहीं करेंगे. ओके, तो बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या ये 40 मिलियन या ये 60 मिलियन उनको कैश से पे करना पड़ेगा? जी बेटा. 40 मिलियन तो संक कॉस्ट है, पहले से इंक्लूड हुई है. जी शाबाश. और 60 मिलियन सर ये अगर हम इसको सेल करते हैं मार्केट में तो एक तरह से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हाँ, सेल तो हमने करना नहीं है, हमने तो देखना है कि आज जब हम ये काम करने जा रहे हैं तो ऑन अकाउंट ऑफ लैंड कोई हमारा कैश आउटफ्लो होगा? नो सर. नहीं. इसलिए ये 40 मिलियन जो बेटा हमने 3 साल पहले खरीदा था, दिस इज संक कॉस्ट.
ये इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट नहीं है। ओके, अब हमें क्या कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी 30, 100 और 10। ठीक है, आए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये इसका सोल्यूशन है, इसको हम यहाँ पे, हाँ ये ईयर 0 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड 4। तो अभी जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं बेटा, दिस इज 30 की है बिल्डिंग, 100 का है प्लांट और 10 के हैं ये एसेट्स, ये 140 हो गए। तो 140 ये हमारे पास आ गए, 30 और 110। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा है कि जब हम इस प्लांट पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो इस लैंड को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹60 मिलियन। जब ये प्लांट हमने लगाया तो ये जो लैंड हमारे पास है जिसके ऊपर हम 40 मिलियन पहले पे कर चुके थे, दैट वाज ए संक कॉस्ट। और अब जब हमने इस लैंड को इस प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो जो ये 60 मिलियन है ना बेटा, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो इस लैंड को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो इस 60 मिलियन को भी हम ले लेंगे एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज के दिन हम ये सपोज करेंगे कि 140 तो हमारा उसी कंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा और 60 मिलियन जो हम उसको बेच के ले सकते थे वो हमें नहीं मिलेगा। दैट 60 इज अपॉर्चुनिटी और टोटल हम आउटफ्लो समझेंगे अपना 200 हो गया। एक्चुअली 140 का आउटफ्लो, लेकिन 60 का जो इनफ्लो हो सकता था ना आपका, वो आपका लॉस्ट हो गया। दैट्स वाई हम इसको ले रहे हैं 200। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ी है, हमने मटेरियल और लेबर में भी उसकी एग्जांपल्स देखी थी। यहाँ पे एसेट के तौर पे उसकी एग्जांपल आ रही है। जब आप ये प्लांट लगाएंगे तो इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकेंगे। 40 मिलियन जो इसके लिए पे हुआ था वो सम कॉस्ट है। ओके, अच्छा बेटा, फिर आती है बात सेल्स की। अभी सेल्स कितनी है, 500 मिलियन। तो आपको पहले साल में सेल्स मिल जाएंगी 500 मिलियन। ओके, अगले साल सेल में कितना इंक्रीज है, 5%। ठीक है बेटा, सेल्स में इंक्रीज कितना है, 5%। अच्छा, और इन्फ्लेशन कितनी है बेटा, 8%। तो 500 को जरा 5% का इंक्रीज भी दें और 8% का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी दें, कितनी फिगर आती है, जी बेटा। 567। जी शाबाश। तो ये देखें, ये आपके पास 567 की फिगर आ गई। कैसे आई बेटा, 500 को 5% का इंक्रीज दिया वॉल्यूम का और 8% का इंक्रीज दिया प्राइस का। तो 500 इंटू 1.05 इंटू 1.08। ओके, फिर इसी तरह ये अगले साल की भी कैरी करके देखें क्या यही आ रही फिगर। यस सर, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह फोर्थ ईयर की भी आ जाएगी, इंटू 1.05 इंटू 1.08, दैट इज 729.14। ये क्लियर हो गया बात। अब बेटा ये आ गया रेवेन्यू, इसका 15% था रॉयल्टी, हम इसका स्ट्रेट अवे 15% लेते रहेंगे। ओके, अच्छा जी, कॉस्ट जो थी ना वो थी 75%, और उस कॉस्ट में से 50 जो थी वो थी फिक्स्ड एंड रिमेनिंग इज वेरिएबल। तो ये जो रेवेन्यू है 500, इसका लिया हमने 75%,
उसमें से 50 निकाल दिया फिक्स का, तो बाकी आ गई वेरिएबल, ये आ गई पहले साल में। अब बेटा जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था ना, वो रेवेन्यू के ऊपर भी था और कॉस्टों के ऊपर भी था, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का। तो देखें बेटा, देखें 325 आई है वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर 5% वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी लेंगे 1.08, तो 325 से इसी तरह ये 368 आ जाएगा, 417 आ जाएगा एंड 473 आ जाएगा। तो ये करके देख लें, समझ आ रही है? जी सर यही है। अच्छा जी, फिर बेटा हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे दी थी? फैक्ट्री बिल्डिंग पे थी 5% एंड प्लान एंड अदर फिक्स्ड एसेट पे थी 25%। तो फैक्ट्री बिल्डिंग हम कितने की बना रहे थे? 30 की, ठीक है। तो 30 का ले लेंगे हम 5%, दैट इज 1.5। ओके, पहले साल को समझा रहा हूँ पहले। प्लान एंड अदर एसेट्स पे कितनी थी? 25%। प्लान एंड अदर एसेट्स हैं 110 के, उसके ऊपर ले लेंगे हम 25%, तो वो आ गई 27.5। ओके, तो ये दोनों एसेट्स की हमारे पास आ गई है डेप्रिसिएशन। फिक्स कॉस्ट थी बेटा हमारे पास 50, तो 50 में से अगर हम ये दोनों निकाल देंगे तो बाकी रिमेनिंग रहेगी हमारी फिक्स कॉस्ट, वो जो कि कैश में पे होती है, जो कि कैश में पे होती है, और उसको कहेंगे कैश फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास आ गई 21, और अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो नीचे देखें दिखा रहा है वो 50। अब डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा, ये तो सेपरेट हो गई, बाकी रह गया 21। इसके ऊपर भी आप 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, इसके ऊपर जस्ट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम वट एवर द वॉल्यूम। तो ये वाली कैलकुलेशन समझ आ गई? जी बेटा, आगे समझ। ठीक है। अच्छा आप देखें डेप्रिसिएशन अगले सालों में कैसे निकलेगी। डेप्रिसिएशन निकलेगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो 30 का हमने 5% लिया तो 1.5 हो गया, तो बुक वैल्यू रह जाएगी 28.5। अब जो 28.5 रहेगी, इसके ऊपर फिर 5% डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो बनेगी 1.43। फिर इसी तरह बुक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका 5% लेंगे तो वो आ जाएगा 1.36। ओके, फिर इसी तरह अगली अमाउंट का डेप्रिसिएशन लेंगे तो आगे 1.29, और इस तरह आप कॉस्ट में से जब ये सारी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू। लाइक वाइज फॉर प्लांट एंड अदर फिक्स एसेट्स। इसको भी करके देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। और बेटा आप कॉस्ट में से ना, जैसे इसकी कॉस्ट कितनी थी 30, इसकी कॉस्ट थी 110, तो जरा कैरिंग वैल्यू भी इनकी निकाल लें एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, यानी कि बुक वैल्यू भी निकाल लें। 24.42 कितनी आ रही है? 24 42। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें फैक्ट्री बिल्डिंग की, और इसी तरह हम निकाल लेते हैं
इस पे है 25। जी बेटा कितनी आ गई? 34.8 आ रही है सर। सॉरी 34.8 जी 34.8 आ जाएगी। और कैसे निकाल सकते हैं आप? 110 इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 एंड 0.75 करके निकाल सकते हैं। और इस केस में 0.95 0.95 0.95 एंड 0.95 करके। अच्छा बेटा, अब आपके पास फिक्स कॉस्ट भी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई, रॉयल्टी भी हो गई, तो आपके पास आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। सेल रेवेन्यू माइनस रॉयल्टी माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस फिक्स कॉस्ट, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। इसके ऊपर टैक्स पे करना है 30%, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब बेटा हमने निकालना होता है इस क्वेश्चन में कैश फ्लो, तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, 35 में प्लस कर देंगे ये दोनों डेप्रिसिएशन है, जो कि 29 बन रही थी यहाँ पे। और हमारे पास अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल की भी हमने अमाउंट इन करनी थी। फर्स्ट ईयर में है 35, फिर अगले सालों में ये 5 से बढ़ती जा रही है। 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, ठीक है बेटा। और अगले साल में जाके फोर्थ ईयर में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, तो ये 45 आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आप एक लाइन अलग लिखना चाहो और वो लाइन अलग लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये 35, 40 और 45 गया, और 45 एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप ये 45 यहाँ पे इनफ्लो कंसिडर कर लें। अदरवाइज ये होगा, वो ये भी बता सकते हैं कि 35 प्लस 5 हमने इनपुट किया था, लेकिन हमें वापस मिल रहा है 40 या 35 या व्हाटसोएवर। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो आप जितना इनपुट किया था उतना ही रिटर्न कर लें। इस तरह करने से बेटा हमारे कैश फ्लो कंप्लीट हो गए। ये हमारे पास कैश फ्लो की लाइन आ गई। देखें 35 था, प्लस इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड की, और फिर आउटफ्लो निकाल दिया, तो ये 29 ही रह जाएगा। एंड सो अब 15% का हमारा डिस्काउंट फैक्टर था, वो हमने अप्लाई किया, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आई है 74.84। जब ये निकल आई तो ये क्या है? पॉजिटिव है। सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव, इट इज feasible for LE to accept HL ऑफर। जी बेटा। जी बेटा, बात समझ आ गई? यस सर। कोई इसमें कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे है तो बताएं। ये पॉइंट एक रह गया है जो इसमें मिसिंग हो गया, कि ये मार्केट वैल्यू को हमने पे किया, ठीक है बेटा। और फोर्थ ईयर जब एंड होगा तो हमें उसके कितने पैसे मिल रहे हैं? जी, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वुड बी 75 मिलियन एट द एंड ऑफ द 4 ईयर लाइफ। तो अब हम क्या करेंगे? 4 ईयर लाइफ पे जाके ये मशीन हम बेचेंगे, और हमें उसके कितने पैसे मिल जाएंगे? 75। और जो दूसरी चीज है वो क्या है कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स वुड बी इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। और जो बाकी एसेट्स हैं वो कितने के सेल हो जाएंगे? अपनी कैरिंग वैल्यू पे। तो जो भी हमारे पास कैरिंग वैल्यू बन रही थी फैक्ट्री बिल्डिंग की, ठीक है, और ये जो दूसरे अदर एसेट्स हैं उनकी भी हमने वो वैल्यू लिख दी। तो ये भी हमारे इनफ्लोज होंगे जब द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने उसका तो कुछ करना नहीं है, फिर उसको सेल ही करके हमें जो प्रोसीड्स मिलेंगी, दीज आर अवर इनफ्लोज। यहाँ पे 60 का हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा था, यहाँ पे 75 की उसकी इनफ्लो आएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग की किस वैल्यू आ रही है? जो कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, कैरिंग वैल्यू। प्लांट की भी इसी तरह जो बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू बन रही थी वो हमारे पास रिकवर हो जाएगी। तो बेटा ये है 2019 का समर का क्वेश्चन। सर इन केस अगर गेन या लॉस हो तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? एसेट के ऊपर
जी जी बिल्कुल करेंगे। देखो बेटा, अगर क्या होगा कि से एसेट की बुक वैल्यू है 40, ठीक है, तीनों केसेस बना लेते हैं, सेल भी हो रहा है 40 का, तो कोई गेन लॉस आएगा? इस केस में कोई गेन लॉस नहीं है, ठीक है। कोई गेन लॉस नहीं है, तो कोई टैक्स भी नहीं होगा, तो हमें प्रोसीड्स क्या मिलेंगी? दैट इज 40, जो भी सेल हुई है उतने पैसे हमें मिल जाएंगे। अब और केस बना लेते हैं। बुक वैल्यू थी 40, सेल हुआ है 50 का, कितना गेन हुआ बेटा? 10, और टैक्स है अगर एट द रेट ऑफ 30%, जैसे इस केस में था, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 3 रुपीज का। दैट इज 30% ऑफ गेन, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे बेटा? सर ये 3 का टैक्स नहीं है? जी जी 3 का, वो 300 हो गया था, तो बेटा आपको प्रोसीड्स मिलेंगी 47। एग्रीड? यस सर। इसी तरह अब लॉस का केस बना लेते हैं। सेल हो गया है 35 का, ये चलो 36, ऐसा करते हैं, चलो कर लेते हैं 30 का कर लेते हैं, चलो वर्सेस बन जाएगा ना, चलो 20 का कर लेते हैं। तो कितने का लॉस आया बेटा? 20 का। इस 20 की वजह से ना आपका टैक्स सेव हो जाएगा। जैसे हमने कल टैक्स शील्ड या टैक्स सेविंग पढ़ी थी, जब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ना आपके पास 20 का लॉस, तो ये आपका प्रॉफिट कम कर देगा, और प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी कम हो जाएगा। अब आपको जो प्रोसीड्स होंगी ना बेटा, वो दैट इज 20 तो सेल करने से आया, और 6 रुपए का आपका टैक्स सेव हो गया, तो आपकी जो प्रोसीड्स होंगी दैट इज 26। जी बेटा, बात समझ आ रही है? ये कोई कंफ्यूजन है किसी को तो यस पूछ। सर, समझ आ गई सर। ठीक है, ये क्या हो रहा है मैं इसको यहाँ पे और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कहोगे यार टैक्स सेव कैसे हो सकता है? सपोज करते हैं कि हमारे ना इससे पहले जो बिजनेस चल रहा था ना, उसकी सेल्स ये हैं, कॉस्ट ये है, प्रॉफिट ये आ गया, ये टैक्स आ गया, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सपोज करते हैं इससे पहले जो हमारी सिचुएशन थी ना, वो ये थी, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस चल रहा था। ठीक है बेटा, अब जब ये चीज हो जाएगी, इसको कॉपी करके ना एज इट इज यहाँ ले आते हैं, सॉरी, इसको यूं कर लेते हैं कि हाँ यहाँ, ये आपको लॉस आ गया कितने का? 20 का। तो अब क्या इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी? दिस प्लस दिस। अब आपकी प्रॉफिट कितना रह जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 एंड, सॉरी ये कॉस्ट है ना, इसको जमा करना है, ठीक है, हाँ ये लॉस आया, तो पहले ही कॉस्ट थी, इसको वो कर देते हैं, तो ठीक है, ये कॉस्ट थी आपकी, ये लॉस आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1220।
अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 280, इसके ऊपर हम ले लेंगे 30%, दैट्स 84, ठीक है। और तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह गया 196। तो बेटा अब आप देखो आपको टैक्स कितना सेव हुआ, पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 90, अब देना पड़ रहा है 84, 6 का आपका टैक्स सेव हो गया। इस लॉस की वजह से, जब ये लॉस नहीं था तो आपको टैक्स देना पड़ता था 90, जब ये लॉस आ गया, ठीक है, ये बिफोर लॉस इनकम स्टेटमेंट है, ये लॉस आ गया, और ये आफ्टर लॉस जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी ये वो आ गई। तो लॉस होने से आपका टैक्स क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, और कम होने से आपको क्या मिलती है, टैक्स की सेविंग। तो 6 रुपए आपके ये बच गए जो टैक्स अथॉरिटीज को जाने थे, 20 रुपए उस एसेट को बेचने से आ गए, आपको प्रोसीड्स होंगे 26 की, ठीक है हमाद। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता था बेटा जो आपके पास यहाँ पे है और इसके आंसर में मिसिंग है, वो ये है कि जब आप ये वाली लैंड जो 40 की आपने खरीदी थी 60 की बेच रहे हो, तो इस वक्त भी तो गेन आएगा, ठीक है। जैसे 40 की ली और 60 की बेच रहे हो, 20 का गेन आएगा, गेन आएगा तो टैक्स अथॉरिटीज आ जाएंगे और कहेंगे 6 रुपये हमें टैक्स दो, आपको प्रोसीड्स कितनी मिलेंगी, 54। तो जो इसका आंसर है ना, हमने यहाँ पे आंसर में लिया हुआ है 60 ही, कि जो हमें मिल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड में से हमें अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन लेनी चाहिए 54 की। लेकिन सिंस आप अभी इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और BFD में जाके इसको डिटेल से पढ़ोगे तो वहां पे आप इसका आंसर ना 54 के साथ देखेंगे, यहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये जरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 का तो ये मार्केट में सेल होगा, लेकिन जैसे ही सेल होगा तो टैक्स अथॉरिटीज कहेंगे भाई आपने तो खरीदा था 40 का, और लैंड यूजली आपकी बुक वैल्यू पे ही मेंटेन हो रही होती है, तो आपको 20 का हो रहा है गेन, गेन पे हमें फौरन दे दें टैक्स, और टैक्स 6 रुपये बोले जाएंगे, तो आपको जो प्रोसीड्स मिलेगी ना दैट इज 54। तो हमें ये सोल्यूशन वैसे करना चाहिए 54 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें टैक्स का इंपैक्ट हर जगह बेटा कंसिडर करना होता है। ओके, आगे चलें। यस इसका बेस्ट आंसर ये है कि यहाँ पे 54 आए, उससे ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, 84 पे आ जाएगी ये। अच्छा, जब करते हैं ऑटम 2019, Late Limited is considering to accept a 5-year proposal from Mocha Limited for supply of a product, namely K44. ML would use K44 as a raw material for its main product. Detail of the proposal and related matters are summarized as follows. अब बेटा इसमें क्या रिक्वायर्ड है, using net present value method, advise whether LL should accept the proposal and determine the minimum discount rate at which the proposal would be acceptable to LL. आए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, Late Limited is considering to accept a 5-year proposal from Mocha Limited for supply of a product, namely K44. ML would use K44 as raw material for its main product. Detail of the proposal and related matters are summarized as follows. Initial investment in this specialized machinery is estimated at ₹60 million. At the beginning of year 4, LL would require a major overhauling on this machinery amounted to ₹10 million. The machinery can be disposed of at 80% of written down value at the end of the project. In year 1, LL LL would supply 18,000 units of K44 to ML
एट 5,000 पर यूनिट। एलएल इस कंसीडर कर रहा है और वो क्या करेगा बेटा, जब ये मशीनरी लगाएगा तो वो 18,000 यूनिट दिया करेगा एमएल को एट दिस प्राइस। द सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% per annum from year 2 onward. Variable cost is estimated at rupees 4,000 per unit for year 1. Fixed cost associated with the proposal other than depreciation is expected to be rupees 250,000 per month, out of which rupees 50,000 would be allocated overheads. Impact of inflation on revenues as well as cost would be 7%. Tax rate would be applicable at 30% and tax would be payable in the year in which liability would arise. Tax depreciation on machinery would be allowed at the rate of 25% under reducing balance method. The cost of capital of LL is 15%. ठीक है बेटा, इसमें कोई पॉइंट अगर आपको इनिशियली समझ नहीं आ रहा है तो बताएं। क्वेश्चन की स्कीम ये है बेटा कि मौका लिमिटेड ने एमएल ने इससे कहा है कि जी मुझे एक प्रोडक्ट बना के दें K44। अब एलएल ने ये अगर प्रोडक्ट बनानी है तो उसको एक मशीन ही खरीदनी पड़ेगी जो कि आएगी 60 मिलियन की, और उस 60 मिलियन को लेने के बाद 4th ईयर में जाके फिर उसके ऊपर एक और खर्चा करना पड़ेगा 10 मिलियन का, और मशीनरी एट द एंड ऑफ द लाइफ 80% ऑफ द रिटर्न ऑन वैल्यू पे वो सेल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। 5 ईयर की प्रपोजल है तो 5 साल तक हमने इसको जाना है। आए इसका आंसर देखते हैं। जी बेटा, ईयर 1 है, 18,000 यूनिट्स हैं और 5,000 की प्राइस थी, तो 18,000 इंटू 5,000 दैट इज 90 मिलियन। ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में है, दैट इज 90 मिलियन। तो पहले साल को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी बेटा? 4,000। तो 18,000 इंटू 4,000 दैट इज 72,000। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 250,000। उसमें से बेटा 50 जो थी ना वो एलोकेटेड थी, तो एडिशनल जो आपको खर्चा इनकर करना पड़ेगा ना दैट इज 200,000। एलोकेटेड इज इररेलेवेंट। Fixed cost associated with the proposal other than depreciation is expected to be 250,000 per month। ये पर मंथ है। ठीक है बेटा, जी बेटा, दिस इज पर मंथ। तो आपने जब एनुअल निकालनी है तो 250,000 में से 50,000 एलोकेटेड निकाल दी, इनटू 12 कर दिया, तो ये आपको आ गई है पहले साल की फिक्स कॉस्ट। दोबारा बता देता हूँ,
fixed cost associated with the proposal other than depreciation is expected to be 250,000 per month, out of which 50,000 would be allocated overheads. तो allocated overheads तो पहले भी incurred हो रहे होते हैं. हमने ये देखना होता है कि जब हम ये डिसीजन ले रहे हैं इसके नतीजे में कौन सा कैश एक्स्ट्रा इंकर्ड होगा. तो बेटा वो इंकर्ड होगा 250 माइनस 50,000 200,000 और ये था पर मंथ तो इनटू 12 कर दिया. डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 25% है, क्वेश्चन में दी गई है. Tax depreciation on machinery would be allowed at the rate of 25% under reducing balance method. तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 60 मिलियन की, तो 60 मिलियन के ऊपर हम ले लेंगे 25%. ओके बेटा. अच्छा जी, ये ईयर 1 हो गया. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल आएगा, दिस माइनस दिस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 600. इनकम टैक्स एट 30%, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 420,000. तो अगर हमने कैश फ्लो निकालना है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो दैट इज 15,420. ओके. ईयर 0 में बेटा हमारा 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो ये 0 और 1 ईयर कंप्लीट हो गया है. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं. 0 और 1 ईयर में जी बेटा आवाज आ रही है. यस सर. 0 और 1 ईयर में कोई क्वेश्चन बनता है तो बता दें. अच्छा जी, अब आगे जाते हैं, अगले सालों में देखते हैं क्या होता है. उन्होंने ये बताया था कि सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम और इन्फ्लेशन होगी 7% फ्रॉम 1 ईयर ऑनवर्ड. तो यहाँ से अब हमने 5% सप्लाई बढ़ानी है और 7% इन्फ्लेशन बढ़ानी है. तो जितना हमारे पास ये आया था इसको इंटू 1.05 कर दें, इंटू 1.07 कर दें, ये आ जाएगा. एंड सेम गोज फॉर टिल ईयर 5. इसी तरह बेटा वेरिएबल कॉस्ट है, उसके अंदर भी वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ जाएगा. एंड सेम गोज टिल ईयर 5. फिक्स कॉस्ट में से हमने निकाल ली थी पहले साल की, इसके अंदर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाएगा, ये हर साल चलता रहेगा, इसके अंदर वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन बेटा आपके पास 25% आ गई है, तो 60 मिलियन का एसेट था, 25% लिए तो पहले साल आ गए 15, तो 45 रह गया. 45 के ऊपर फिर 25% ले लेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन. लेकिन बेटा क्या होगा कि फोर्थ पीरियड में जाके आप, ये कब था हमारी ओवरऑलिंग, अच्छा जी, वुड रिक्वायर्ड अ मेजर ओवरऑल ऑन दिस मशीनरी अमाउंटेड टू ₹10 मिलियन. ठीक है. और कब है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4. बेटा ये है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ ईयर 3. तो आप देखें एट द एंड ऑफ ईयर 3 ये 10 मिलियन लगा रहे हैं. अब क्या होगा कि जो हमारी बुक वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है बेटा, जो बुक वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही होगी उसके अंदर 10 मिलियन हम ऐड करेंगे और फिर अगले पीरियड की डेप्रिसिएशन आएगी. ठीक है. जब भी आप देखें यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 8.4, जबकि यहाँ पे बढ़ के हो गई है 8.8. तो जरा ये ईयर 4 की कैलकुलेशन करके देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक्सेल में कर देता हूँ. यस सर, यही आ रही है 8828. ठीक है, बाकी लोग भी देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा बता दो. अच्छा जी, फिर इस तरह अब ये जो आ गई, इसके बाद फिर हमारी बुक वैल्यू आएगी, फिर उसके ऊपर हम ले लेंगे 25% और ईयर 5 में जाके ये आ जाएगी. ओके. अच्छा जी, फिर क्या होगा कि ये एसेट कितने का बिक जाएगा बाद में, जी, द मशीनरी कैन बी डिस्पोज ऑफ एट 80% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जो आपकी बुक वैल्यू आएगी उसका 80% पे वो एसेट सेल हो जाएगा. तो इसका मतलब है 20% का क्या आ जाएगा, आपको लॉस आ जाएगा. तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी आपने निकाल लिया, लॉस ऑन डिस्पोजल. तो जो लॉस होगा, जैसे भी हमने एक्सेल में कैलकुलेशन की थी, तो लॉस होने से क्या होता है, आपको टैक्स की सेविंग आ जाती है, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी. तो आपके पास बेटा ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
इसके ऊपर हम ले लेंगे टैक्स। जब ये लॉस आया तो प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, कम, तो ये टैक्स भी ऑलरेडी कम हो चुका है। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंदर जो भी हमारे कैश फ्लो, जैसे ये आउटफ्लो एक हुआ, और ये रेजिडुअल वैल्यू जो है हमें दैट इज 0.8, ये हमें मिल जाएगी ना बेटा। जब हम उस एसेट को सेल करेंगे हमें कितने पैसे मिल जाएंगे, 15890। ये करके देख लें, आपको ये समझ आ रहा है। जो भी इसके रेजिडुअल वैल्यू के पैसे हैं वो हमें मिल जाएंगे। यस सर, कैरिंग वैल्यू 19863 आ रही है, उसका 80% ये है जी। अच्छा बेटा, अब इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, जितनी भी हमारी डेप्रिसिएशन आई थी उनको ऐड बैक कर लिया। और जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है ना, दिस इज आल्सो अ नॉन कैश। जिस तरह डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो दिस लॉस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉन कैश। इसको भी ऐड बैक कर लेते हैं। ये पॉइंट एक ध्यान में रख लो, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं होती, बल्कि लॉस ऑन डिस्पोजल जो होगा ना वो भी ऐड बैक होगा। दिस इज आल्सो अ कैश, नॉन कैश लॉस। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है और लॉस ऑन डिस्पोजल भी नॉन कैश होता है। अगर आपने कैश फ्लोज पढ़े में, कैश फ्लो स्टेटमेंट यस सर। पढ़ी है बेटा कैश फ्लो, और इनडायरेक्ट मेथड से। यस सर, पढ़ी थी। उसके अंदर देखो ना, जब हम लेते हैं ना प्रॉफिट्स, उसके बाद ऐड बैक करते हैं लॉसेस को, नॉन कैश। यस ये यस सर। ये वही चीज़ है, यहाँ पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं हम। तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गया। इसके ऊपर हमने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया 15% का, और ये हमारे पास आ गई है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस सवाल में सिर्फ आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि ऐड बैक करना है लॉस ऑन डिस्पोजल, और ये कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ना वो इस 10 मिलियन के इम्पैक्ट के साथ आ रही है। ये बुक वैल्यू ऐड करके ये डेप्रिसिएशन आई है। तो अब बेटा इसमें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है नेगेटिव बाय 1337। दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गई। सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इज नेगेटिव, एलएल शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज बताएं। क्वेश्चन दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। सर ये ओवरहॉलिंग 4th ईयर में नहीं हो रही? बेटा देखो क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग। जब बिगिनिंग है ना तो दिस इज द एंड ऑफ द ईयर थर्ड। और अगर हम यहाँ जो 4 लिखते हैं ना, दिस इज 4, इनफैक्ट दिस इज एंड ऑफ ईयर 4। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि हमने कुछ काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, और आपको जब मैं टाइम लाइन बनाकर दिखाता था, से जैसे हमने कल भी बनाई होगी, सॉरी, ये जीरो का मतलब होता है बेटा टुडे। और अगर हम मोर प्रिसाइजली करना चाहते तो आप उसको कह दो 1 जनवरी 2020। 1 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये पहले साल का एंड हुआ तो ये 31 दिसंबर 2020 बन गया। या आप चाहो तो इसको क्या कह सकते हो, 1 जनवरी 2021।
ओके। और अभी हम ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो बेटा, वो क्या कह रहा था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 क्या बन रही है, 1 जनवरी 2024 और 31 दिसंबर 2023, ये दोनों एक ही बातें, ठीक है। ये जो दिस इज एंड ऑफ ईयर 4 है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। दिस इज एंड ऑफ ईयर 4 है, ठीक है। और वो क्या कह रहा था हमें, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 बेटा यहां बनेगा। जी आप बताएं, आप कंफर्टेबल हुए हैं या अभी भी और एक्सप्लेन करूं। ये देखो, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 क्या बनेगा, एंड ऑफ ईयर 3 पे। जैसे चलो यहां से आते हैं, टुडे एंड ऑफ ईयर 1 कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को। और यहीं से बेटा क्या स्टार्ट हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, दैट इज 1 जनवरी 2021। अगर इसको हम यहाँ ले आए, शायद आपको और आसानी हो जाए। जी बेटा, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 कब बनेगा, एंड ऑफ द ईयर 3 पे। यस सर, क्लियर हो। क्लियर हुआ ना आप। अच्छा जी बेटा, अब आते हैं और जो इसका सेकंड पार्ट था, कि देखिए 15% में तो ये नेगेटिव आ रही है। डिटरमिन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच द प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेबल टू एलएल। तो बेटा यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि इसका आईआरआर निकालो। 15% पे ये आ रहा था नेगेटिव, तो हम क्या कर रहे हैं, 10% में निकाल के देख रहे हैं। ये जो हमारे पास कैश फ्लोज ऊपर से आए हैं, ये वाले 60 सारे सारे वो हमने दोबारा लिख दिए, और एक दफा 10% डिस्काउंट फैक्टर पे निकाल के देखा तो एनपीवी आ रही है पॉजिटिव, दैट इज 7430। फिर वो जो हम इंटरपोलेशन करते हैं वो हमने सारी की, और हमारे पास आईआरआर आ गया है 14.24%। तो ये मिनिमम डिस्काउंट रेट है। अगर उसको ये पैसे 15% के बजाय 14 पे मिल रहे होते तो इसकी एनपीवी पॉजिटिव आती, 13 पे मिलते, 12 पे मिलते, 11 पे मिलते, और 10 पे आपने देख लिया कि ये बाय 7430 पॉजिटिव आ रही है एट 10%। तो यहाँ तक तो आपके सामने क्वेश्चन हो गया था बेटा। तो अगर हमने मिनिमम डिस्काउंट रेट निकालना है तो यही जो कैश फ्लोस थे, ये ऊपर वाले नेट कैश फ्लोस, इनको उठा के एज इट इज लिखा, 10% पे सॉल्व करके देखा एनपीवी क्या आ रही है, फिर ये इंटरपोलेशन हमने सीखी हुई है, और हमने आईआरआर निकाल लिया 14.24%। अगर उसको 14.24% पे मिलता है ये, तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन क्या था बी पार्ट में, determine the minimum discount rate at which the proposal would be acceptable to LL। अभी इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल रहा है 15% पे, उसको कहीं से लोन मिल रहा है या जो भी उसके पास फंड है उनकी कॉस्ट 15% पे हो रही है, तो वो 15% पे उसका नेगेटिव एनपीवी आ रहा है, और 14.24 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में अब कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये मिनिमम डिस्काउंट रेट निकालने से बनाता है बेटा आईआरआर, जिस पे प्रपोजल एक्सेप्टेबल हो जाए। क्योंकि आईआरआर पे क्या है कि इनफ्लोज भी इक्वल हो गए हैं आउटफ्लोज के, तो उसको कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इतना भी सूरत हाल हो जाए तो काफ़ी होती है कि लॉस ना हो। हाँ बेटा, ये 18 आठम का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं।
इसमें कौन सा क्वेश्चन था, ये 17 मार्क्स का आया हुआ है। On the basis of internal rate of return, advise whether GL should acquire the new plant. अभी उनका कॉस्ट कैपिटल है 12%, ठीक है। और इसमें जो बाकी पॉइंट्स हैं, Golf Limited is engaged in the manufacturing and sale of a single product, Smart X. The existing manufacturing plant is being operated at full capacity, but the production is not sufficient to meet the growing demand of Smart X. GL is considering to replace it with a new Japanese plant. The production capacity of the new plant would be 50% more than the existing capacity. To assess the viability of this decision, the following information has been gathered. The purchase and installation cost of the new plant would be 500 million and 25 million respectively. ये परचेज भी आ गई और इंस्टॉलेशन, आपने दोनों को ऐड अप करना है बेटा, क्योंकि दोनों आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा. The supplier would send a team of engineers to Pakistan for final inspection of the plant before it is commissioned. 50% of the total cost of ₹12 million to be incurred on the visit would be borne by GL. जितनी भी कॉस्ट इनकट होगी, दैट इज 12 मिलियन, उसमें से 50% आपने बेयर करनी है, 50% जो कंपनी भेज रही है ना इंस्टॉलेशन करने के लिए, वो बेयर करेगी. तो आपको 6 मिलियन बर्दाश्त करने पड़ेंगे. As a result of the installation of the new plant, fixed costs other than depreciation would increase by 30 million. फिक्स कॉस्ट जो अभी आपके पास होती थी वो 30 मिलियन से इंक्रीज कर जाएगी. दैट इज आल्सो रेलिवेंट फॉर योर डिसीजन. The existing plant has an estimated life of 10 years and is in use for the last 6 years. तो अब उसकी लाइफ कितनी रहेगी बेटा? 4 years. Plant's tax carrying value is 50 million. टैक्स के मुताबिक उसकी जो कैरिंग वैल्यू है 50 मिलियन आ रही है. A machine supplier has offered to purchase the existing plant machinery immediately at rupees 45 million. तो बेटा 5 मिलियन का आपको क्या हो जाएगा? नुकसान. उस नुकसान के ऊपर क्या मिलेगी आपको? टैक्स सेविंग. तो आपको 45 मिलियन ये मिलेगा प्लस वो टैक्स सेविंग जो मिलेगी, दैट वुड बी योर कैश इनफ्लो. ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर 6 million units were sold at an average selling price of rupees 550 per unit. और अब हमारी कैपेसिटी 50% बढ़ेगी. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 450 per unit. GL expects that it can increase the sales volume by 25% in the first year after the plant installation. Therefore, the sales volume would increase by 4% per annum. तो पहले साल में आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा 25% से और उसके बाद इंक्रीज करता रहा करेगा 4% per annum. The new plant would be depreciated under the straight line method. Tax depreciation is calculated on the same basis. The residual value of the plant at the end of its useful life of 4 years is estimated at rupees 60 million. जब हम नया प्लांट ले रहे हैं, जो 4 साल के बाद वो इतने का सेल हो जाएगा. Applicable tax rate is 30% and tax is paid in the year in which the liability arises. Rate of inflation is estimated at 5% per annum and would affect the revenues as well as expenses. GL cost of capital is 12%. All receipts and payment would arise at the end of the year except cost of setting up the plant, which would arise at the beginning of the year. It may be assumed that the new plant would commence operations at the start of year 1. Start of year 1 का मतलब बेटा क्या है? At 0 period. जैसे हमने यहाँ बात की ना, टुडे जो है that is start of year 1 है. जीरो जो होता है ना बेटा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 और ये इसका एंड ऑफ ईयर 1 पे जाके होता है. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बेटा है, आप इसको एज ए होमवर्क करो. कल इसमें जो कोई क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन आपके आए तो आप मुझे बताइएगा, और भी हम पास पेपर्स कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है बेटा? तो ये कौन सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको होमवर्क में दिया है, दैट इज ऑफ ऑटम 18. ऑटम 18. सर ये 12 मिलियन का 50% है. जी 12 मिलियन का 50% हमने बेयर करना है और 50% बेयर करेगा वो जो है प्रोवाइडर.
है सर। कैसे पे बियर करेगा बेटा? देखो उसने हमसे पैसे लिए ना प्लांट के, तो प्लांट की इंस्टॉलेशन करना उसकी जिम्मेदारी है ना, नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है ना, यहाँ देखो बता देता हूँ, शायद आ रहा होगा। ये देखो 500 मिलियन प्लस 25 मिलियन हो गए इंस्टॉलेशन, 12 मिलियन का 50% वो बियर करेगा और 50% हम बियर करेंगे। तो हमने तो 6 मिलियन अपने पास से लगाने हैं ना। और ये क्या कह रहे हैं, जो 45 मिलियन जो पहले बिका है ना, वो उसकी यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, कितने का वो बिकेगा, इसका टैक्स का इम्पैक्ट नहीं ले रहे। लेकिन मैंने आपको टैक्स का इम्पैक्ट समझा दिया है, अगर आप वो डाल देंगे तो एग्जामिनर आपको ज्यादा वेटेज देगा। ये सिर्फ 45 मिलियन ले रहा है, हालांकि उस पर 5 मिलियन का लॉस हो रहा है, उस लॉस की वजह से भी आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, लेकिन वो इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। लिखा हुआ है सर ऊपर, क्या लिखा हुआ है? ये टैक्स सेविंग लिखा हुआ है। नहीं, टैक्स सेविंग लिखी है। अच्छा सॉरी, वो उन्होंने यहाँ पे ईयर 1 में जाके ली है। ईयर 1 अच्छा ली हुई, ठीक है। लेकिन ईयर 1 में, चलो हाँ ईयर सेम ईयर है 0 और 1, क्योंकि पहला साल ही है ना। अच्छा यहाँ पे लिख दी है उन्होंने, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे नहीं ली उन्होंने, यहाँ पे जाके ले ली, क्योंकि आप रिटर्न जो फाइल है वो तो ईयर 1 में करेंगे ना। ठीक हो गया, तो ये आप सॉल्व करना बेटा, कल इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।